वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स। सो ऑल दीज आर रिलेटेड विथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्लावर. The male reproductive part of flower is called as androecium, correct? And each whorl of androecium is called as stamen. So stamens are the male reproductive structures. So in angiosperms, the number of stamen varies according to the species. Now first of all, see the structure of stamen. So here you can see it is the structure of stamen. Each stamen consists of two parts. The fertile part is called as anther. Fertile part you can observe, it is called as anther. So the stalk of anther is called as filament. The stalk of anther is called as filament. देखो एंथर्स कई टाइप के होते हैं, मोनोथिकस, डायथिकस एक्सेट्रा. तो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंथर इज डायथिकस एंथर. So here you can see it is the diagram of diathecus anther, where you can observe there are four lobes are present. So 1, 2 and behind 2. So four lobes are present. Okay. So here you can observe 1, 2 and behind 2. So four lobes are present here. Therefore such anther is called as diathecus anther. Okay. अब diathecus anther में जो lobes है, इन lobes को एक जगह रखने का काम और एंथर को फिलामेंट में अटैच करने का काम यहाँ पे एक शॉर्ट कनेक्शन रहता. इट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव. व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव. द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एंथर टू द फिलामेंट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव. पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एंथर टू द फिलामेंट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव. एंथर जो है उसको बाहर एक्सपोज करने का काम, फ्लावर के बाहर एक्सपोज करने का काम ये फिलामेंट्स करते हैं. बराबर है. और ये जो फिलामेंट है एक तो थैलेमस के ऊपर अटैच होता है या फिर पेटल्स के ऊपर. द फिलामेंट इज आइदर अटैच्ड ऑन द थैलेमस और ऑन द पेटल्स. ओके. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायथिकस एंथर व्हिच शोज टू मेन पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट. ओके. एंथर फर्टाइल लोब है क्योंकि इसके अंदर पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते. माइक्रोस्पोर्स, पोलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेटोफाइट्स. And to this anther there is a supportive structure called as filament which exposes the anther to a proper height. Here you can see the anther is diathecus. Why the anther is called as diathecus? Because it has four lobes. Okay, such anther is called as tetrasporangiate. Tetrasporangiate. Tetra means four. Okay, so four pollen sacs are present. Four pollen sacs. Pollen sacs are also called as microsporangium or microsporangia. Okay, so pollen sacs or anther is called as microsporangia. So here are four pollen sacs are present. Four pollen sacs. In each lobe there are two pollen sacs. In each lobe there are two pollen sacs. So here two, here two. So four pollen sacs are present. So what are these? These are pollen sacs. Also called as microsporangia. Also called as microsporangium. एक है तो microsporangium, चार है तो microsporangia. Inside this pollen sacs, sporogenous tissue is present. After meiosis, it produces pollen grains. So what are these? These are pollen grains. Here you can observe these are pollen grains. Okay, so pollen grains are produced inside the anther. So, and remember here the anther when it is young it is compact, it is closed. At maturity what happens? As pollen grains are produced, now the pollen grain has to be released. Has to be released for pollination. So anther has to be broken. So towards each side there is a line of dehiscence. Dehiscence means breaking. There is a line of dehiscence. Through this line of dehiscence the anther will rupture and pollen grains are released in the atmosphere for pollination. Okay, so here you can see the transverse section of pollen grain जो है वो बटरफ्लाई शेप जैसा आपको दिख रहा है. अब यही डायग्राम जो है देखो, इस डायग्राम में
एक दो तीन चार, चार पोलन सैक है, बराबर। अब ये चार पोलन सैक जो है और ये ट्रांसवर्स सेक्शन जो है एंथर का, वो हम अब आगे डिटेल में पढ़ने वाले। लेट अस स्टडी द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। लेट अस स्टडी द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। तो देखो, जो एंथर है बेसिकली वो दो चीजों से बना है, एक एंथर वॉल और दूसरा स्पोरोजिनस टिश्यू। एंथर इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, एंथर वॉल एंड स्पोरोजिनस टिश्यू। एंथर वॉल जो है, एंथर वॉल इट इज मेड अप ऑफ फोर लेयर्स। एंथर वॉल इज मेड अप ऑफ फोर लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल लेयर्स एंड टैपेटम। ओके, तो देखो बेटा, एंथर की स्टडी करनी है तो ट्रांसवर्स सेक्शन लेना होगा। डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के नीचे हम जो एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर अलग अलग करेंगे, फिर उसके बाद ट्रांसवर्स सेक्शन लेके हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे, लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमको कुछ इस तरह से डायग्राम दिख सकती है। अब ये कंप्लीट डायग्राम नहीं है बेटा, हमने सिर्फ इतना सा स्ट्रक्चर लिया है, एक पोलन सैक और एक ऊपर की वॉल। ओके, तो ऊपर की वॉल, एंथर वॉल और एक पोलन सैक। तो एक साइड, मतलब कहने का मतलब क्या है, हमने एक साइड जो है एंथर की यहाँ पे ड्रॉ किया है, एक साइड। ऐसे चार साइड होते हैं, बराबर है, चार पोलन सैक है तो चार साइड होते हैं, तो एक साइड हमने यहाँ पे ड्रॉ की है। तो बेटा एंथर जो है दो चीजों से बना है, नंबर एक एंथर वॉल और दूसरा अंदर पोलन सैक, उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू। तो सबसे पहले देखेंगे एंथर वॉल। So let us see first what is anther wall. Anther wall is made up of four layers. Okay, सबसे outermost जो लेयर है epidermis, उसके नीचे एंडोथेसियम, उसके भी नीचे मिडल लेयर्स और इनरमोस्ट कौन सी है, टैपेटम है। तो चलो एक एक डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले जो लेयर है फर्स्ट epidermis। अब ईपी का मतलब ही होता है आउटर और डर्मिस का मतलब होता है स्किन। सो आउटर लेयर ऑफ एंथर वॉल इज कॉल्ड एज epidermis. It is single layer and it is continuous to all the four pollen sac. चारों pollen sac का वो क्या है, कॉमन कवरिंग है। सिंगल लेयर है, देखो सिंगल लेयर है ना, सिंगल लेयर है, आउटर मोस्ट है और चारों पोलन सैक की कॉमन कवरिंग है। इट इज मेड अप ऑफ थिन पैरेनकाइमेटस सेल्स and as it is outer layer it is protective in function. So this is about epidermis. अब epidermis के नीचे सेकेंड लेयर है, सेकेंड लेयर इज कॉल्ड एज एंडोथेशियम। ये भी सिंगल लेयर है, epidermis के नीचे है और कॉमन टू ऑल फोर पोलन सैक, वो भी चारों पोलन सैक को कैसी है, कॉमन है। अब एंडोथेशियम जो है, these are radially elongated cells. Endothecium is radially elongated cells and their radius shows fibrous thickening. आप यहां पे देख सकते हैं तो थिकनिंग प्रेजेंट है उनके रेडियस के ऊपर। सो द वॉल ऑफ एंडोथेशियम शोज fibrous thickening and these fibrous thickening are present everywhere except transverse grooves. Suppose यहां पे मैं एक एंथर ड्रॉ किया, एंथर का टीएस, तो देखो एंडोथेशियम सब तरफ थिक है, लेकिन इस जगह पर जहां पर ये ग्रूव प्रेजेंट है, डिप्रेशन प्रेजेंट है, यहाँ पे ये दो जो जगह है, अगर इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल देखेंगे तो उसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ डिहेशंस। समझ में आ रहा? तो इस जगह पर ओके, मतलब यहां से देखो, यहां से लेकर यहां तक वो थिक है, इधर यहां से लेकर यहां तक थिक है, लेकिन बीच में थिकनिंग एब्सेंट है। समझ में आ रहा? क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब एंथर मैच्योर होता है, ये जो फाइब्रस थिकनिंग है, एंडोथेशियम जो है वो हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब वो एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, उसकी वजह से उसके अंदर वाटर भर जाता, बराबर है, मॉइस्चर भर जाता और वो एक्सपांड होता, उससे टेंशन क्रिएट होता, और जहां पर वो थिकनिंग एब्सेंट है, जिसको हम शालो ग्रूव्स बोलते हैं, वहां से एंथर फूटता है, ब्रेक होता है और पोलन ग्रेन्स लिबरेट होते हैं। सो ब्रेकिंग ऑफ एंथर इज कॉल्ड एज डिहेशंस ऑफ एंथर। समझ में आ रहा? सो एंडोथेशियम एट मैच्योरिटी हेल्प्स इन डिहेशंस ऑफ एंथर। ये हो गया दूसरी लेयर। तीसरी जो लेयर है, द थर्ड लेयर आर कॉल्ड एज मिडल लेयर्स। थर्ड लेयर आर कॉल्ड एज मिडल लेयर्स। देखो एपिडर्मिस सिंगल थी, एंडोथेशियम सिंगल थी, लेकिन जो मिडल लेयर्स है वो पैरेनकाइमेटस से थिन है
और 1 से 3 लेयर है, 1 से 3 लेयर। आप यहाँ पे कुछ जगह देख सकते हैं 1 2 3 है, यहाँ पे 2 है, कुछ जगह पर 1 है। तो मिडल लेयर जो है पैरेन्काइमेटा से थिन है और जो है वो अंदर की जगह भरने का काम करते हैं, बस उतना ही काम करते हैं। एंड एट मैच्योरिटी दे डीजनरेट, एट मैच्योरिटी दे डीजनरेट। वो डीजनरेट होने की वजह से ये दोनों पोलन सैक एक हो गए, दोनों पोलन सैक एक हो गए। सो दिस इज अबाउट मिडल लेयर्स, 1 to 3 लेयर्स, थिन पैरेन्काइमेटस, डीजनरेट एट मैच्योरिटी। नेक्स्ट, innermost layer of anther wall is tapetum which surrounds the sporogenous tissue. टैपेटम के दो स्पेशल कैरेक्टर है। नंबर 1, उसके सेल्स पॉलीप्लॉइड है, रिमेंबर। सेकेंड, दे आर न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। वो स्पोरोजिनस टिश्यू को, अंदर के पोलन ग्रेन्स को क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है। सो दिस इज अबाउट टैपेटम। सो बेटा एंथर वॉल इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स। आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर बिलो इट एंडोथेशियम, उसके भी नीचे मिडल लेयर्स, और इनर मोस्ट क्या है, टैपेटम। अब ये हो गए एंथर वॉल। नाउ नेक्स्ट, अंदर जो यहाँ पे ये डिप्लॉइड मास दिख रहा है, डिप्लॉइड पैरेन्काइमेटस मास, दिस इज कॉल्ड एज स्पोरोजिनस टिश्यू। एट मैच्योरिटी स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, and each cell of sporogenous tissue is called as pollen mother cell, PMC, pollen mother cell. And pollen mother cell undergo meiosis, each cell is called as pollen mother cell which are diploid, undergo meiosis and it forms tetrad of pollen grains. तो यहाँ पे 1 2 3 पीछे 1 4, तो ऐसे कनेक्टेड 4 पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होते हैं। ऐसे में माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होते हैं एंड दीज माइक्रोस्पोर्स आर 4 in number and they are haploid. How are they? They are haploid. Okay? और जब लिबरेशन का टाइम आता है, पॉलिनेशन का टाइम आता है, तो ये माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो सेपरेट ऐसे 4 माइक्रोस्पोर्स एक पोलन मदर सेल से फॉर्म होता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। नाउ दिस हैप्लॉइड स्पोर्स जो है, इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन दिस स्पोरोजिनस टिश्यू। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब ये जो पोलन ग्रेन्स फॉर्म हो गए बाय मियोसिस, देखो पोलन मदर सेल मियोसिस हो गया, माइक्रोस्पोर्स फॉर्म हो गए और 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स यहाँ पे तैयार है। अब उनका स्ट्रक्चर कैसा है, हाउ आर द पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स का, अगर आप पोलन ग्रेन्स डिफरेंट फ्लावर्स की स्टडी करेंगे तो पोलन ग्रेन्स का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, अलग अलग स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन का। कुछ पोलन ग्रेन पाउडरी है, कुछ ओवल है, कुछ राउंडेड है, कुछ इलांगेटेड है, कुछ नीडल लाइक है, एक्सेट्रा। तो जो पोलन ग्रेन्स है बेटा, पोलन ग्रेन की वॉल को बोलते हैं स्पोरोडर्म एंड इट इज 2 लेयर्ड। आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एक्साइन, जो कि थिक है, और वो थिक क्यों है, क्योंकि उसमें स्पोरोपोलिनिन है। स्पोरोपोलिनिन ये एसिड अल्कली को रेजिस्टेंट है। समझ में, अभी तक कोई ऐसा एंजाइम डिस्कवर नहीं हुआ जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके। स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड्स, मैंने क्या कहा, अभी तक ऐसा कोई एंजाइम डिस्कवर नहीं हुआ जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके। सो इट इज एसिड रेजिस्टेंट, इट इज अल्कली रेजिस्टेंट। सो एक्साइन विच इज थिक मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, तो प्रोटेक्शन करता है ये इन्वायरमेंट में। सेकेंड जो लेयर है वो इंटाइन है। देखो एक्साइन कुछ जगह पर एब्सेंट है, उसको बोलेंगे जर्मपोर, वहां से पोलन ट्यूब फॉर्म होती। सेकेंड लेयर है इंटाइन, थिन है और वो सेलुलोस और पेक्टिन से बनी है, सेलुलोस और पेक्टिन से बनी है। पोलन ग्रेन के सेंटर में हैप्लॉइड न्यूक्लियस है और बाजू में अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल है, जिसको क्या बोलेंगे हम, साइटोप्लाज्म। पोलन ग्रेन 2 टाइप के होते हैं, एक स्मूथ वॉल्ड, तो मोस्टली जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स है, मोनोकॉट्स है, उसमें स्मूथ वॉल्ड पोलन ग्रेन्स दिखाई देता है, जैसे कि ये डायग्राम है। और कुछ पोलन ग्रेन जैसे कि डायकॉट्स में जो इंसेक्ट पॉलिनेटिंग पोलन ग्रेन्स है वो रफ वॉल्ड रहते हैं। इसका मतलब क्या है, इन पोलन ग्रेन्स के ऊपर ऐसे स्पाइन्स प्रेजेंट रहते हैं, सच स्पाइन्स आर प्रेजेंट। सो दिस इज रफ वॉल्ड और स्पाइनी पोलन ग्रेन। समझ में आया? So beta, this is all about male reproductive structure. Thank you. Join ज्ञान साधना प्रतिष्ठान परभणी।